hits it. Where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch proportionally. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर पांडे सर। सर जी, पहले तो प्रणाम, नमस्कार, हैप्पी हंटिंग। नमस्कार आदि। अब तो हैप्पी हंटिंग बोलना पड़ेगा सर, अब हंटिंग ही हो रही है सर, क्या करें। Absolutely. Pakistan is being hunted like by the wolf and the wolf and the hare all together. Yeah. So पता नहीं पाकिस्तान कौन सा जानवर है कि the wolf is also hunting it and the hare is also hunting it. Yeah. Sir, so 48 hours का ceasefire सर, do you think the war will start? पहले तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, दोबारा लड़ाई शुरू करेंगे कि ये हो गया ठंडा सर? देखो, इसको ये बहुत ही शार्प क्वेश्चन है आपका, and it requires a little bit of little backgrounder and context setting before that. So मैं ये कहूंगा कि जो ग्लोबल पावर गेम्स होते हैं वो कई बार बहुत ओपनली डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं. They a process is set in, and that process itself is meant to achieve what they want to achieve. So in this scenario, what is happening is that there is a silent setup which is being orchestrated for Iran. I mean, when I say for Iran, I mean US against Iran. So it is US game which is getting actually set up. And that setup had 2-3 actually angles to it. When I say angles, it means basically geographically. So if you see, Iran's western part, so Georgia, Armenia, they have been fighting for a lot of time now. And that conflict was not only personally between these two countries, but it was also a kind of a alignment which was existing. Because there was a little bit of play up of Russia, there was a little bit of play up of USA, and all that was happening. So what happens is suddenly you see that they have struck a peace deal. Now this peace deal, if it was so natural that peace prevails there, then they could have done it a long time back. But this happens, and this is something. Yeah. So this is something which has been engineered actually. Now, why engineered? Yeah, you said something, Adi. I am saying Trump hai sir. Yeah, true. So that's only, what happened? It describes everything. You just say Trump hai, bas khatam. Yeah, exactly. So now, what was the aim? Aim was basically to connect NATO, to the areas which are closer to the west of Iran. So these are the areas which are closer to west of Iran. And if you see going across Azerbaijan, Caspian Sea, and then, taking a hook and again coming to Iran. So this western flank was basically meant to be secured. और जो भी चाहे आप बेसेस की बात करें, चाहे आप सर्विलेंस की बात करें, चाहे आप और दूसरे एसेट्स की बात करें, तो ये एक enabling factor था, so that NATO resources can go as close to Iran as possible. So this was one game which was played and which has already been played, and now the after effects. Yeah. छोटा रिक्वेस्ट आ रहा है सर, हिंदी। Yeah. ठीक है। तो ये जो गेम किया इन्होंने, तो नेटो और ईरान के इस वेस्टर्न पार्ट के बीच में जो भी कंट्रीज थी, जो भी टेरिटरीज थी, उसको नेगोशिएट करके नेटो बिल्कुल ईरान के पास में आ जाए, वो चीज करने के लिए इन्होंने ये पीस डील किया. तो ये तो एक ज्योग्राफिकल जो डायरेक्शन है उसको इन्होंने इस तरफ से एक तरह से कवर कर दिया ईरान को. फिर दूसरा इनका गेम ये था कि आप जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जिसमें कि आपको अगर आप
बाउंड्री देखें मैप पे तो आपको ऊपर अफगानिस्तान मिलेगा, फिर उसके नीचे सदर्न पोर्शन में पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान सिंस ऑलरेडी उनके लैप में जा चुका है, उनकी शरण में पहुंच गया है और सब कुछ उसने अपना सरेंडर कर दिया है ट्रंप के सामने, तो ये तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब था जो बाकी का जो पोर्शन था, जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में है, उसको कैसे सिक्योर करना है। तो उसको सिक्योर करने के लिए यूएस अपनी फिजिकल प्रेजेंस चाहता। तो फिजिकल प्रेजेंस चाहता था, तो हर एक चीज जब आप ऐसे करते हैं, और खासकर अगर आप एक ऐसे देश हैं जो 2021 में भाग के चले गए हैं वहां से, और ऐसे भाग के गए हैं वहां से जैसे कि मतलब आपको खुद भी होश नहीं था, एंड सडनली द वे थिंग्स हैव हैपेंड, आई मीन फॉर अ ग्लोबल पावर लाइक यूएसए, आई थिंक उससे बड़ी शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती थी। तो वो करने के बाद अब आप दोबारा आना चाहते हैं, तो आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, और हमेशा जब भी जस्टिफिकेशन चाहिए होता है ऐसे ग्लोबल पावर्स को, तो बड़ी बड़ी चीजों पे, लिबरलिज्म हो गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, आप कॉन्फ्लिक्ट हो गई वहां पे, इसलिए हम आए हैं पीस क्रिएट करने के लिए। तो वो बेसिकली करते क्या है कि जब वो आना चाहते हैं तो पहले कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट को फिर यूज करते हैं जस्टिफाई करने के लिए, एंड देन दे लैंड अप देयर, दे हैव देयर प्रेजेंस। सो वाग्राम बेस, एयर बेस वाज वन व्हिच दे वर टारगेटिंग। अब उसको आप कैसे हासिल करें, तो आपने पहले एक बार इच्छा जाहिर की, तो अफगानिस्तान ने उनको शोड देम द वे, और जब अफगानिस्तान ने मना कर दिया उनको और कोई गुंजाइश नहीं लगी, तो फिर उनको ये था कि भाई यहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, जिसकी वजह से अफगानिस्तान मतलब एक प्रेशर में आ जाए, और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर ले, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी ऐसा वो आप सिचुएशन क्रिएट करो कि पाकिस्तान भी स्टार्ट क्राइंग फॉर इट, स्टार्ट आस्किंग फॉर इट, तो दोनों तरफ से कि आप दोनों की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम आ गए जी, पहुंच गए, तो हमने बागराम एयरबेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये जो नौटंकी यहाँ पे रची गई इसकी, तो ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, मतलब बेसिकली देयर एम वाज कि कंट्रोल्ड प्रेशर क्रिएट करना वहां पर, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, एस्केलेशन शुड बी मैनेज्ड। तो जब ये इन्होंने किया, तो वो थोड़े से में ही रिस्पॉन्स जो था अफगानिस्तान का, वो इस किस्म का था कि which became unmanageable as far as Pakistan was concerned, and Pakistan actually got a taste of it कि इसका फ्लेयर अप कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए। सो ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई। तो उन्होंने पहले तो एयर स्ट्राइक्स किए। अब जब उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए, उससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ, और खास हासिल नहीं हुआ तो उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जो गया वर्ल्ड ओवर ग्लोबली कि आप एयर स्ट्राइक करते हो, लेकिन आपकी एयर स्ट्राइक सर्जिकल नहीं है। For airstrikes to be surgical, you need to have that kind of weapon systems. That is one, but more than that, you need to have that kind of intelligence. That means you do not have that kind of intelligence and that kind of dynamic intelligence. कि अभी जो target आप जिसको कर रहे हो, that asset is located somewhere. Suppose it moves within 24 hours, so you should have dynamically the ability कि आप उसको track कर सकें। तो ये दोनों फ्रंट में वो फेलियर हो गया। दूसरी चीज, उन्होंने ये नहीं रियलाइज किया था कि ये जो इनका गुड तालिबान और बैड तालिबान है, जो पहले एक जमाने में इन्होंने उसको एक वो दे रखा था, तमगे दे रखे थे कि ये गुड तालिबान है जो कि दूसरी तरफ है पार में, और बैड तालिबान है जो हमारे अंदर में हमारे अगेंस्ट तालिबान है भाई, तालिबान है। बस गुड बैड अगली इज योर परसेप्शन आफ्टर दैट। बिल्कुल। और तालिबान का बेसिकली इट इज आइडियोलॉजी, एंड अगर वो आइडियोलॉजी ऐसी है कि उस आइडियोलॉजी के को फॉलो करने वाले लोग अगर गलत काम भी करते हैं, तो वो फिर तालिबान उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं करता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ कोर अंडरस्टैंडिंग विच दे हैव। तो अभी क्या हुआ कि जो एक बैड तालिबान था, वो तो जो करना था कर ही रहा था, काफी टाइम से कर रहा था, और उसकी भी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो गई थी। उसकी जो टारगेटिंग थी, एक्चुअली दे हैड स्टार्टेड टारगेटिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, कैंप्स जहां पे कि यू आर एक्सपेक्टेड टू बी फोर्टिफाइड, एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर्स। तो इस तरह की चीजें, ये एक्चुअली इंसर्जेंसी में या इस तरह की जो ये है कॉन्फ्लिक्ट है, अनकन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट, उसकी स्टेजेस होती हैं एक्चुअली। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग ऑलमोस्ट थर्ड स्टेज ऑफ
द कॉन्फ्लिक्ट, कि अब आप बिल्कुल हार्डन्ड टारगेट्स को अटैक करने जा रहे हो और आप सिक्योरिटी फोर्सेस से पंगे ले रहे हो, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड इन द मैनर इन विच दे शुड रिस्पॉन्ड। तो एक तरफ तो वो हो गया, दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो गुड तालिबान था, एक्चुअल तालिबान फोर्सेस हैं, उन्होंने आपको डूरन लाइन पे आपको फिक्स कर दिया, और फिक्स ही नहीं किया, जिस किस्म के एक्चुअली अभी वायरल जो हुए हैं वीडियोस, वो देख के ऐसे लगता है कि किस तरह से टैंक्स चल रहे हैं और किस तरह से लोग भाग रहे हैं, किस तरह से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इसका मतलब ये है कि आप जो आपका कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है ऑन डूरन लाइन विज़-वी अफगानिस्तान, दैट इज nil. So that is one aspect. दूसरा इनका क्या है कि देयर इज अ साइकोलॉजिकल एंगल टू इट। आप जब इंडिया के अगेंस्ट में करते थे, कोई एक्शन करते थे या कुछ जंग छिड़ते थे या आपका जो टेररिस्ट अटैक करते थे, सो दैट इज व्हाट यूज्ड टू एक्चुअली ब्रिंग द पीपल टुगेदर। सो कई बार क्या होता था कि जब वहां पे टर्मोइल होती थी पाकिस्तान में, तो उसको मैनेज करने के लिए भी लोगों को साइकोलॉजिकल क्रिएट करने के लिए लोग इस तरह से करते थे। लेकिन वो इक्वेशन सेम नहीं है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान। उसमें दो एंगल है, एक तो ये है कि वहां के पाकिस्तानी जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, वो खुद भी इस चीज के खिलाफ होंगे, और दूसरा जो आपका नैरेटिव रहा है कि हमेशा से आपने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो इस्लामिक उम्मा के लिए लड़ रही है। That is the cause, that is the kind of ideological narrative that you had created. Now you are fighting against that same ummah actually. तो अब ये चीज, this is not going to be palatable to Pakistan, the people per se. Second aspect is also that within Pakistan army, there are a lot of actually these communities, which will not be comfortable, and you never know that there can be a turmoil within Pakistan army also if this kind of activity or this fight against Taliban or Afghanistan, this continues. So this is not sustainable. They may have better equipment, they may have air force capability, they may have everything, but they can't actually apply those in a situation like this. सर पंगा एक और है ना, आप फ्रंट लाइन पे खड़े हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप फ्रंट लाइन पे खड़े हो सर, ठीक है। 1990s की सिचुएशन में सबको याद कराता हूँ दोबारा, इंडियन आर्मी जो एलओसी पे खड़ी थी, जो पीछे से टेररिज्म होती थी, उससे हमारे एक्शन जो फ्रंट लाइन में होते थे वो पूरे इम्पैक्ट होते थे। एब्सोल्युटली ठीक है। हमने उसके बाद काउंटर ग्रिड बनाया, सब कुछ करा और ये सब करा, पाकिस्तानियों ने तो कुछ भी नहीं करा वहां पर। एब्सोल्युटली। सो एक तो ये चीज हो गई। अब क्या है कि हिंटरलैंड पे जो आपका सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो तालिबान कर रहा है वो अलग ही कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू आर फाइटिंग ऑन द एलसी और द बॉर्डर्स, व्हेन यू आर फाइटिंग अ कन्वेंशनल वॉर, that conventional war is totally dependent on the logistics and reserves, application, movement, mobilization of forces, and so many things, which is happening in hinterland. And if your hinterland is already, suffering from a situation like this, तो आपकी जो conventional जो है वो आप कर ही नहीं सकते। और दूसरा जो एंगल मैंने बोला कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी फैक्शंस हैं एक्चुअली, पश्तून्स हैं और बाकी के जो फोर्सेस हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल फाइटिंग विद अफगानिस्तान। थर्डली क्या है कि इफ यू रिमेम्बर, फैज हमीद को जब निकाला था आईएसआई चीफ को, तो उस टाइम पे बेसिकली फैज हमीद वाज द वन, सितंबर 2021 में, इफ आई एम राइट, ही वाज द फर्स्ट टू विजिट एक्चुअली अफगानिस्तान, जब ये यूएस का विड्रॉल होने के बाद में बंदे सो फॉर व्हाटएवर रीजन इट मे बी, फैज हमीद हैज had his hold over lot of things, because ISI का क्या होता है ना कि आपका जब डीप कनेक्शंस होते हैं तो वो पर्सनालिटी ओरिएंटेड भी बहुत सारे होते हैं, और while you as a personality are heading an organization, तो आप क्या करते हो, आप एक अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लेते हो, और वो इकोसिस्टम जो है वो आपका पर्सनलाइज्ड हो जाता है एक किस्म से। तो अब अगर आपका स्मूथ ट्रांजिशन होता है, अगर आईएसआई चीफ का स्मूथ ट्रांजिशन होता है, तो वो बाय एंड लार्ज उस इकोसिस्टम को हैंडओवर करके चला जाता है। सो दैट इकोसिस्टम वर्क्स इन द फेवर ऑफ द इनकम्बेंट। बट अगर आपको डिफरेंट कंडीशंस में आपको चेंज किया जाता है, एंड व्हेन यू आर मूव्ड आउट और रिमूव्ड और व्हाटएवर इज हैपनिंग,
then what happens is you don't actually hand over that ecosystem. तो ये जो ISI में भी है, there is a divide actually which is existing in ISI. So ये दो तीन factors जो हैं, इसकी वजह से situation as far as Pakistan is concerned, neither it can actually push nor it can actually retract. Because retract करेगा तो US पीछे डंडा लगाएगा, क्योंकि आपने ऐसे तो लंच खाया नहीं है, फ्री का लंच तो दिया नहीं है आसिम मुनीर को, ट्रंप ने. ये क्या हुआ है कि ये जो सारा प्लान था, तो ये दूसरा एंगल है प्लान का. तीसरा एंगल भी मैं बता दूं, देन आई थिंक विल गो इन फॉर द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग. और तीसरा एंगल ये है कि ग्वादर को अमेरिका वांट्स टू टेक ओवर कंट्रोल ऑफ ग्वादर. नाउ चाइनीज एंगल तो डेफिनेटली है, बिकॉज आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हो. आप एक अपना कि ग्वादर को हम कंट्रोल करेंगे, और अगर हम ग्वादर को कंट्रोल करेंगे तो अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके बाद बंदर अब्बास तक का ये जो सी लेन है, अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया, अगर आपने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया, दैट मींस यू हैव चोक्ड Iranian oil supply, chains. So this was the third angle into this. So how they were trying to encircle, Iran, and how they were wanting to choke Iran, is these three, angles to it. Now, which angle succeeds? Whether all succeed, whether all don't succeed, it is, the time will tell us. तो अब समय के साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे इसका वो हो रहा है, निराकरण हो रहा है. तो इसमें बेसिकली क्या था कि जब ये प्लान बनाया इन्होंने, तो इस प्लान को सक्सीड करने के लिए इनको दो तीन चीजें चाहिए थी. एक तो था कि पाकिस्तान इनके पॉकेट में आ जाए, तो वो इन्होंने किया. और उसके बाद जो लंच वंच हुआ, उसके बाद डिफिकल्ट सी सिचुएशंस में आसिम मुनीर को कुछ डॉलर्स दिखाए, कुछ पर्सनल चीजें दिखाई, कुछ प्रेशर्स दिखाए. तो उसके बाद में आसिम मुनीर एक्चुअली प्रोबेबली साइंड फॉर इट, या जो कुछ भी फॉर्मल एक्शन करना था वो उस लंच में हुआ. उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को आसिम मुनीर ने डेफिनेटली बोला होगा ट्रंप को कि मेरे ही गले में क्यों आप घंटी बांध रहे हो, आप ये पॉलिटिकल सिस्टम को भी इसी तरह से करो. तो फिर इसके बाद और विजिट्स हुई, जिसमें हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ जी भी गए वहां पर. और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट वीडियो चल रहा था, तो किस तरह से उनको क्या क्या चीजें बुलवाई गई उनसे, और बहुत ही सो ये टू सम इट ऑल एक्चुअली ये प्लान का पूरा हिस्सा था. और उस प्लान में ये भी था कि इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू एक्चुअली प्ले द बॉल. अब गड़बड़ का कहाँ क्या हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि जब अप्रैल में ये सिचुएशन पहलगाम में क्रिएट हुई, और उसके बाद एज ए काउंटर टू दैट व्हेन इंडिया स्ट्रक पाकिस्तान, तो उसमें जो बाकी के टारगेट्स जो थे, जो एयरफोर्स, एयर एसेट्स और ये सारे चीजें थी, उसके साथ साथ जो हम रडार्स की गिनती करते थे, 6 रडार्स की गिनती करते थे, एक्चुअली ये 6 रडार्स को हमने बहुत ही एकदम तुच्छ प्राणी समझ के हमने उसको जरा इग्नोर करके रखा अपनी जो एक्सप्लेनेशंस में और उन चीजों में. हमने उसके बारे में बहुत ज्यादा हमने 6 रडार बोल दिया, लेकिन उसका इम्प्लीकेशंस हमने नहीं देखा. एक्चुअली रडार्स जो थे, रडार्स वाज नॉट ओनली सिंपली रडार्स, इट वाज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो इन्होंने अमेरिका ने एस्टैब्लिश किया हुआ था टू कैरी आउट सर्वेलेंस ओवर चाइना, एज ऑल्सो व्हेन द टाइम कम्स फॉर ईरान. तो एक्चुअली ये डिस्ट्रॉय हो गया. और ये जो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये दिस वाज ह्यूज एसेट एक्चुअली. बाकी के एसेट्स फिजिकल टर्म्स में दे कुड हैव रिप्लेस्ड, दे कुड हैव ब्रॉट इन, दे कुड हैव डन समथिंग अबाउट इट. But when you actually, so because it is linked with command and control system, there are systems of systems actually. So it's not very easy to replace it. And even if you have the assets to replace it, it has a huge time penalty actually. So this is one element which is least talked about, but this is one element which was damaged and destroyed and affected very severely. So ये इंडिया ने किया. फिर इंडिया ने मीडिएशन वाला भी जो गेम था वो भी थॉट कर दिया, बिकॉज इंडिया स्टूड अगेंस्ट इट एंड vehemently opposed it that there is no mediation, neither it has happened nor it is going to happen. So ये सारा जो एंगल जो हुआ, मीडिएशन वाला रिफ्यूजल हुआ. So basically इंडिया ने क्या एक्चुअली मैसेज दिया? इंडिया ने ये मैसेज दिया that we have our own script
to play. We don't play your script. And this message was used because it was futuristic also. कि आगे भी हम वो नहीं करेंगे जो आप चाहेंगे कि हम करें. तो इस लिहाज से एक्चुअली ये सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी. और ये या जो आज हमने स्टेटमेंट दिया है वो भी उसमें ही आता है. आज भी हमने बोल दिया भैया टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अफगानिस्तान इज वी स्टैंड बाय इट. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान इज वी स्टैंड बाय दैट. नाउ इंडिया हैज डीप इंटरेस्ट इन पूरा एक जो प्रॉपर लैंग्वेज लगा के आपने बोल दिया है. तो दिस इज अ वेरी क्लियर हिंट. आप भी इन्वॉल्व हो यहाँ पर. सी देखो एक बड़ी चीज है, हमारे कौटिल्य जी ने बोला है कि जो आपका नेबर है वो एक नेचुरल एनिमी हो सकता है और उस नेबर का नेबर आपका नेचुरल दोस्त हो सकता है. ठीक है, नेचुरल दोस्त होगा रादर. सो व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इज कि इंडिया एंड अफगानिस्तान ये दोनों बहुत नेचुरल एलाइज हैं एक्चुअली. अब क्या हुआ, थोड़े दिन बिछड़े हुए, तो जैसे राम और भरत का मिलाप जब हुआ था तो कितना इमोशनल, कितना स्ट्रांग था. अब आप 4 साल 5 साल के गैप के बाद में जब आपका वो हो रहा है तो आपके सारी चीजें आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो. तो ये वो चीज हुई एक्चुअली इंडिया के और अफगानिस्तान के रेफरेंस में. तो नेचुरल एलाइज अगर हैं दे हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर. ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है which may not be actually as per Indian ideology. There are certain things, but geopolitics में आप वो सब चीजों को नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए. और यही शायद pragmatism जिसकी हम बात करते हैं, that pragmatic approach is what India has adopted. दूसरा एंगल ये है कि ट्रंप के रिजीम में या यूएस में या ये सारे जो वेस्टर्न जो लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा एथिक्स में, इनको बहुत ज्यादा आइडियलिज्म में फर्क नहीं पड़ता है. तो हम क्यों सिर पे लगा के ये सब. एग्जैक्टली. तो सॉरी, तो अभी क्या हो रहा है कि क्यों इंडिया को बार बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि अभी सोचो कितनी बार इंडिया ने बोला कि तुमने मीडिएशन नहीं किया. ट्रम्प बोले जा रहा है कि हमने मीडिएशन, बिकॉज दे हैव गॉन टू बिलीव दैट कॉग्निटिव वॉरफेयर वाली थ्योरी कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगी. नहीं होता ना सर आज के दिन में. वही पंगा है. So sometimes actually you have to keep reinforcing the truth, keep reinforcing the realities, and so India also is bound to actually keep communicating certain things. तो इसलिए ये भी communication हो रहा है और हर अलग अलग तरीके से communication हो रहा है. I am sure what is happening in Kyrgyzstan, some kind of command and control activity is taking place. And I am sure something must be happening in Afghanistan itself, actually. So, ये सारी जो चीज है ये बड़ी कठिन हो गई है एक्चुअली, मुश्किल हो गई है पाकिस्तान के लिए. So Pakistan doesn't know कि which way to. Guys, बस हिंट बड़ा सिंपल है. किर्गिस्तान में कौन है आप वो अपने आप सर्च कर लो, वो छोड़ दो. Who's there, what is there, छोड़ दो. बट सर पता ये चला है कुछ सामान भी गया है काफी सारा. चाइना ने भी बहुत सामान दिया है, ईरान ने भी सामान दिया है, रशिया ने भी सामान दिया है, और एक और है एक कंट्री वो भी, उसने भी सामान दिया है. You see, ये डेफिनेटली होगा, बिकॉज अभी क्या है कि ये जो आपका जैसे लास्ट 1-2 पॉडकास्ट पहले जब हमने डिस्कस किया था कि कैसे 3 थिएटर्स बनाए गए और उन 3 थिएटर्स में जो एनिमीज हैं आइडेंटिफाई किए गए. और ये अब जो ये वाला एरिया है यहाँ का मेन एक्चुअली एनिमी ईरान है. तो वो ईरान को एक्चुअली बिना फुट ऑन ग्राउंड करके दे वांट टू एक्चुअली प्रेशराइज और क्रिएट कंडीशंस सो दैट ईरान succumbs to it, little realizing that Iran is not actually going to do that, but still that is the wishful thinking that USA is trying to attempt that this kind of thing will happen. But अब अगर ये होगा और एक एक्सेस जो है, नया एक्सेस क्रिएट हो गया है, because all those countries which have actually suffered, जिसका कि इनक्रेडिबल अमेरिका, जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, वो एक इनक्रेडिबल दूसरा वाला होता था जो हमने इनक्रेडिबल इंडिया का किया हुआ था, और एक जो जिसकी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो गई हो जिस कंट्री की,
वो जब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करता है तो देन यू हैव टू एक्चुअली गार्ड योरसेल्फ. So as a result, what has happened is probably that alignment. It may not be that they are allies, but there is an understanding, and that understanding is a very huge understanding that we have to actually counter this kind of a madness. तो चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, अब ये सारी जितनी कंट्रीज और इंडिया डेफिनेटली इज इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दिस. So what has happened is यहाँ पर इंडिया तगड़ा पहलवान हो गया है, who has declared his position, who is standing by his positions, and others are probably quietly supporting. But अगर आप अफगानिस्तान को देखें, उस दृश्य से देखें, तो अफगानिस्तान की सिचुएशन यूएसए रशिया के अगेंस्ट भी है, because if America is trying to do something in अफगानिस्तान, वो रशिया के लिए भी डेट्रीमेंटल है, वो चाइना के लिए भी डेट्रीमेंटल है, और ईरान के लिए तो डेफिनेटली है. तो एज ए रिजल्ट ये सारी एब्सोल्युटली, तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं, अब अगर आप देखो कि अफगानिस्तान को चाहिए क्या, कौन सा फील्ड है, कौन सा एरिया है वेयर अफगानिस्तान इज लिटिल कमजोर है जो थोड़ा. अब एयर डिफेंस में है, ठीक है, अब एयर डिफेंस में है. अब एयर डिफेंस का क्या होता है कि अगर आपके पास में इग्लास है, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, इग्लास हैं, तो आप पहली चीज तो आप जो ये रोटरी विंग है उसको तो आप काफी कुछ कर सकते हो, और यस, और फाइनल स्टेज स्ट्राइक की स्टेज में इवन आप फिक्स्ड विंग को भी हैंडल कर सकते हो. तो अभी एक तो ये एरिया है विच दे वांट एक्चुअली. देन देयर आर अदर इक्विपमेंट्स, अदर एसेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, एंड मोर देन दैट यू सी इतना हथियार छोड़ के गए हैं अमेरिकन. जब अमेरिकन गए हैं 2021 में, तो शायद यही सोच के गए होंगे कि कभी जब आएंगे तो हमारे काम आएगा. तो अब उतना हथियार छोड़ के गए, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, थोड़े से स्पेयर्स चाहिए, थोड़ा सा और चीजें चाहिए, टू पुट थिंग्स टुगेदर. सो ये वाला चीज है. वो तो सर सेंट्रल एशिया से बड़े बंदे आ जाएंगे इनके पास. या तीसरा अभी एक और एंगल है एक्चुअली, कि जो फैक्शंस हैं इन अफगानिस्तान, उसमें से जो हक्कानी ग्रुप वाला जो फैक्शन है, उसको हमेशा से पाकिस्तान को इस बात का दम रहा है, या उसको मतलब एक ईगो है कि वो हमारे पॉकेट में ही रहता है. तो ये हमेशा से, अगर आप देखो फैज हमीद की जो मैंने बात की सितंबर 2021 की, ही वेंट देयर एंड इट इज सेड दैट ही इज द वन हु गॉट हक्कानी ग्रुप इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट. तो इस तरह का से था, लेकिन वो उस समय था, वो फैज हमीद के टाइम पे था, वो एक अलग सिचुएशन थी. अभी क्या हुआ है कि जो तीन जो मेजर पावर सेंटर्स हैं अफगानिस्तान में, तो एक तो हक्कानी है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करता है. दूसरा है आपका जो कंधार फैक्शन है. तो कंधार फैक्शन एक्चुअली डिफेंस मिनिस्टर है वो, और उसके बाद जो पॉलिटिकल फैक्शन है, पॉलिटिकल ग्रुप जो है, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय मुत्तकी एंड ऑल दीस पीपल. तो अभी आप सिनेरियो देखो क्या होता है, क्योंकि इसी से हमें इंडिकेटर्स तो ऐसे ही मिलेंगे ना व्हेन वी रीड थ्रू द बैटलफील्ड. सिनेरियो ये होता है कि मुत्तकी को यूएन गिव्स परमिशन, वेवर देता है, उसके ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ है वेवर देता है. सैंक्शन कमेटी में पता है कौन बैठा है सर? हाँ, पाकिस्तान. पाकिस्तान. दैट इज व्हाट आई एम हिंटिंग. तो अभी क्या होता है कि आप देखो, इंडिया विजिट करने के लिए उसको वेवर देता है डिस्पाइट पाकिस्तान सिटिंग ऑन दैट. तो ये कहां से आ रहा है प्रेशर? ठीक है, क्यों, हु इज इंटरेस्टेड कि मुत्तकी गोज टू इंडिया एंड ये सब होता है? इंडियन सॉइल से जो यलगार करता है वो, दिस इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाई इज ही सेइंग ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम इंडियन सॉइल? दूसरा क्या होता है कि ये जो बॉर्डर पे अटैक्स होते हैं, उस चीज के लिए डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है आपका कंधार ग्रुप वाला. तो इसका मतलब दे आर इन यूनिसन.
So and they are उसमें भी voting. आना है, कंधार काबुल रूट में भी आना है आपको. Yeah. We need to talk about that. Yeah. तीसरा एंगल क्या है? तीसरा एंगल है हक्कानी. हक्कानी चुप रहता है. हक्कानी तो सर एंटी इंडिया है, मैंने सुना. See, he may be. क्या होता है ना, देखो, हक्कानी is a puppet of Pakistan. So even if the puppet has to rise against the master, it needs some time. So उसका जो process है अभी वो चुप है. अगर what is as of now ideally assumed is कि वो internally अभी integration जो intelligence वाला होता है ना, वो इतना जल्दी खत्म नहीं होता है. So they still be they still might be having some kind of hold or something, but sorry, अगर आप देखें जो पिछले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हुए, मैं वही दिखाने वाला था सबको. अच्छा गाइस, जरा इसको थोड़ा सा नोट करिएगा. India's invitation to Taliban envoy in UAE is routine. There is no change in it. Who's the Taliban envoy in UAE? His name is Badruddin Haqqani, charged the affairs of Afghan embassy in Abu Dhabi. This guy is the first cousin of Sirajuddin Haqqani. Yeah. So not only at this place, Hadi, if you see इस फैक्शन के लोग या उसके डिपार्टमेंट के इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग, हक्कानी के जो लोग हैं, वो काबुल में भी गए हैं, अटेंड किया है उन्होंने celebrations, and they have attended in other countries also. And in this scenario, why should Haqqani group or Haqqani keep quiet? So he kept quiet. अब आप उसके कंट्री के अंदर $250 मिलियन का डैम बनाते हो फ्री फंड में, ठीक है? वो आपसे लड़ेगा? And this angle, 4 मिलियन लोगों को पानी पिलाने वाले हो, नो प्रॉब्लम. एंड पूरा कॉस्ट आप ले रहे हो, मेंटेनेंस, ये एवरीथिंग ऑल डन बाय इंडिया. $250 मिलियन. या सो अब अगर इसको कोऑर्डिनेशन वाला एंगल देखें, अगर आप, तो कोऑर्डिनेशन वाले एंगल में अगर आप स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स देखें, तो स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स क्या हुए हैं? एक तो आपके डिफेंस के टर्म्स में स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स हुए हैं, दैट यू हैव हिट द नर्व ऑफ पाकिस्तान थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, and Operation Sindoor is still going on. You can anytime, and which will take few minutes. So वो आपने कंटिन्यू किया है. इधर इन लोगों ने किया है, तो you have balanced the, जो प्रेशर्स है वो बैलेंस किया है आपने, कि जब आपकी मर्जी हुई तो आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हो, जब जरूरत हुई तो आपको पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट से आपको प्रेशर बढ़ जाएगा, जब जरूरत हुई तो वेस्टर्न फ्रंट से बढ़ जाएगा. सो सी द कोऑर्डिनेशन, दिस इज द फाइनल कोऑर्डिनेशन. फिर आप दूसरा स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर क्या करते हो? आप पानी रोक देते हो. तो जब आपने इंडस वाटर ट्रीटी को आपने कैंसिल किया, और इसका मिरर इमेज क्या हो रहा है कि यहां पर अफगानिस्तान में आप डैम बना रहे हो. So I think these are the strategic maneuvers which India has actually resorted to, and which should be, or which must be, getting seen by USA in a very, very serious way. And probably, now they will do some kind of a, कुछ कि आग को बुझाने वाला कुछ काम शायद वो करने की कोशिश करें. लेकिन इंडिया ने बहुत क्लियर कट और जो भी एक्शंस लिए हैं, बहुत डिसाइसिव एक्शंस लिए हैं. और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, इंडिया का कनेक्ट जो है अफगानिस्तान में, आई थिंक दैट इज इनकम्पेरेबल. वो किसी भी कंट्री के साथ में इतना नहीं है अफगानिस्तान में जितना इंडिया के साथ में. और वो लोग जब ग्रास रूट लेवल के लोग जब किसी कंट्री को एक विश्वसनीय तौर पे देखते हैं, एक पावरफुल तौर पे देखते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, ये बहुत फार रीचिंग एक्चुअली मैसेज था. बिकॉज आजकल देखो लाठी बोलती है. इट इज अ पावर, and even earlier sayings that power flows through the barrel of the gun. If you are weak, then nobody is going to follow you. If you are strong, then everybody is going to. So what has happened is, in the narrative warfare also, जहां पर 3 शब्द की बात करते हैं, हम बोलते हैं एक्शन है, इमेजेस है, एंड वर्ड्स.
ये 3 चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे नैरेटिव को सही ढंग से। तो अगर आप देखोगे आपने एक्शन जो किया ऑप सिंदूर के टाइम पे, उस एक्शन से ये क्लियर हो गया लोगों को कि हम कर सकते हैं। वी हैव द कैपेसिटी एंड वी हैव द कैपेबिलिटी, एंड you may be a friend of USA, you may be a friend of anybody. It doesn't matter and we don't care about it. This message has gone through across in Afghanistan also. तो ये पार्ट भी इसका जो प्ले अप है, that is also actually happening. So ये है कुल मिला के, in my understanding that this is the kind of thing which is, happening. अब हमें ये इंडिकेटर और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना चाहिए कि जो गेम इन लोगों ने किया था एक्चुअली, वो गेम क्या था टोटल, और उस गेम में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और क्या होने बाकी है, which we should actually see that they should unfold in times to come. So अगर आप देखें आर्मेनिया वाला एक्शन तो ये कंप्लीट हो गया है। गल्फ में क्या था, इन्होंने क्या किया, रेड सी फ्रंट पे जो भी सिचुएशन क्रिएट किया, उसके बाद सेंटकॉम ने अपना डिप्लॉयमेंट कर लिया है। सो सेंटकॉम हैज ऑलरेडी brought in adequate naval assets. तो ये काम इनका कंप्लीट हो चुका है एक किस्म से। इसके बाद इन्होंने क्या किया, तीसरा गेम क्या था इनका, हुतीज वाला गेम था कि some kind of reflexive control and all that happens. So Houthis start actually doing things, और वो भी एक justification था for naval assets and naval resources to actually come into this place. अब जो काम इनका एक्चुअली बाकी है वो एक तो बागराम वाला है, जो मुंगेरी लाल के सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। एंड I mean, as we see it in all media and social media and other domains, it is very evident that probably at the end of the day India may be occupying Bagram base. अब अगर आप imagine करो, you are mute. अगर कोई डील होगी, it won't be occupying. I think I'd kindly disagree with that word. I think it'll be, आओ यार काम करते हैं। Exactly. Yeah, occupied का मतलब है कि even if you have your resources jointly operating, working, it is आजकल occupation तो बहुत किस्म का होता है। हाँ, no force. But sir, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, if you don't mind. Yeah, please. There are two small videos, which is now this is the TTP chief, जिसने आज शाम को बड़ा clear मैसेज दिया है, पाकिस्तान makes all sorts of allegations, ये वो हम इंडिया के साथ हैं, ये है वो है। बेसिकली टीटीपी चीफ केम एंड सेड कि भाई लोगों, मैं पाकिस्तान के अंदर हूं, तुम वहां अफगानिस्तान में कहां लड़ रहे हो जाके, ठीक है। तो पहला ये है, एंड सेकंड आई वांट टू एक्चुअली शो यू द रियलिटी ऑफ दिस पाकिस्तानीज। जस्ट एक्चुअली गाइस लिसन टू दिस गाय, all of you know this guy हामिद मीर। 2-3 बारी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराया आर्मी ने, एक बारी तो गोली भी मार दी थी। Let's listen him to him. हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज अफगानिस्तान का जो आज का अफगानिस्तान है उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के जो हीरोज हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की, और अफगान तालिबान जो है वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, कुछ लोग हैं जिनमें कि आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये So this is the biggest joke. तो मैंने ट्वीट करा था, मैंने बोला था ये साले इन लोगों ने अब्दाली ये वो नाम रखा है, today they're getting beat by the same chap, and probably with the same names also. Absolutely. अभी किसी दिन इनको नाम भी बदलने पड़ेंगे इनके सबके। बस तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी ना इन लोगों ने एक बारी, ये साले दोबारा पहनेंगे। Yeah, that is what they are heading for actually. So ये जो सिचुएशन, मतलब जो हम बात कर रहे थे कि बागराम is yet to happen probably, मतलब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से they are yet to occupy Bagram, which may not happen ever.
अगला कदम इनका ये भी होगा कि ये जो सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, दे आर गोइंग टू डिप्लॉय सम ISR एसेट्स इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में कुछ ISR एसेट्स ये डिप्लॉय करेंगे, और ये भी एक इंडिकेटर होगा whether their plan is actually they're still pushing through the plan or there is a little, hijacking which has happened by, anybody. तीसरा जो चीज इन्होंने करना है कि एथनिक chaos क्रिएट करना है ईरान में. See, I'm sticking out my neck by talking about something futuristic which probably US would have actually planned for. So that is another thing. Maritime blockade, I mean, assets are there, resources are there. They may attempt, but उससे पहले इनको, ग्वादर का full control लेना होगा. So ग्वादर का control लेने का मतलब है कि direct confrontation with China. So चाइना यूएस का टेंशन तो बढ़ेगा, बट उन दोनों के बीच में जो सैंडविच है उन्हें जा रहा है, दैट इज पाकिस्तान. So that is another angle which is going to actually get created, and probably Pakistan is going to see the repercussions. And then one more, issue which happens every time, everywhere, is that cyber wala या आप cognitive वाला कह लो या जो भी इसका, जो कि Gen Z and all this dramatics which USA has been actually trying to master for many years. So these 4-5 things are yet to happen, but certain things have already manifested. So this is how it appears that things are going, and let's see how finally they pan out. But there is no doubt that India is definitely taking control of what it needs, and joint जो security requirements हैं अफगानिस्तान की और इंडिया की, I think they are jointly working on, and they are trying to become strengths of each other. So that is what I feel. Volume. What's happening? I'm going to just take one last small little point, although I had shown this before, but this is the most opportune moment to see Asim Munir's new uniform, sir. So yeah. ठीक है, ये आसिम मुनीर की नई यूनिफॉर्म है, तो हमने पहले भी दिखाया है. This is after Operation Sindoor 3, 4, 5, 6 ये हालत होने वाली है इसकी if he survives. But sir, when we इसने कितनी गलत हालत में डाल दिया है अपने देश को, मतलब एक आम तौर पे भी समझ में नहीं आता कि किस मिट्टी के बने हुए हैं ये लोग. He's the worst army chief they've had. Yeah. The bugger is smart. There's no question about it. ठीक है, he's shrewd. Yeah. ये क्रूअल है, shrewd है. अब उसने TTP का प्रोटेस्ट खड़ा करा दिया, ठीक है, yeah. उसके बाद 200-300 बंदे अपने ही मार दिए, just to show power. ठीक है, अपने ही बंदे मार दिए, तो जस्ट टू शो कि भैया मैं स्ट्रांग हूँ ऊपर से. लेकिन वो टाइमिंग गलत हो गई, वहां से अफगानिस्तान ने ठोक दिया. आज इनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है, सर बाय द वे, एंड दैट्स द लास्ट दिस थिंग, आई मीन आई डोंट नो इफ यू विल टेक इट एज अ जोक और व्हाट. डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि साहब कल को अगर भारत वहां से कुछ शुरू करता है तो आप क्या करेंगे? कहता है वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर. सर ये एक टाइम था, ये इंडिया को टू फ्रंट सिचुएशन में डालते थे आज. सर, एंड 2 months ago, people were telling us, boss, Pakistan has reached, Pakistan is this, Pakistan is that. Absolutely. And look where they are today. देखो, ये होता है एक्चुअली गवर्नमेंट का विल पावर का मसला होता है सारा, कि अगर आपकी गवर्नमेंट का विल पावर है, नहीं है, काफी टाइम तक नहीं था, तो जब नहीं था तो क्या हो रहा था कि they were imposing the cost on us. एक जब मूवमेंट आया, जब गवर्नमेंट का विल पावर डिफरेंट हुआ, एक गवर्नमेंट आई जो स्ट्रांग थी, which wanted that India should stand for itself. तो आपने क्या किया? आपने धीरे धीरे पहले तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाई. You took 5 years, 7 years, 8 years. You improved upon your capacity. And then when you started hitting them back, actually you started increasing the cost of war on them. तो अब आपने उल्टा कर दिया बिल्कुल, तो धारा आपने बिल्कुल बदल दी है एकदम सी.
तो वो धारा जो है अब इनको फेस करनी पड़ रही है, और इनको ये नहीं समझ में आया कि एक टाइम पे जब शायद इतनी नेशनलिस्टिक अप्रोच वाली गवर्नमेंट ना रही हो और इतना मतलब इस तरह का जो डायमेंशन है जो अभी देखने को मिलता है वो नहीं था, तब भी इंडिया ने आपके 2 टुकड़े कर दिए, तो अब कितने टुकड़े करेंगे? वो तो सर आर्मी चीफ ने तो बोल दिया ना, भूगोल बदल लेंगे तुम्हारा। एग्जैक्टली Yeah, when you connect that with what's happening right now, you're like, oh boy. या एंड अभी देखो पाकिस्तान के सिचुएशन में मल्टीपल फ्रंट्स आपके ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, यू कांट हैंडल इट। अब टीटीपी, अफगान तालिबान और उसके साथ बेले को जोड़ दो और इंडिया फ्रंट को जोड़ दो आप, तो ये तो आपके हो गए जो सॉलिड जो चीजें हैं। फिर इंटरनल स्ट्राइफ, बिकॉज जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है लोगों में, मतलब एक्चुअली अगर देखो आप पाकिस्तान को इस समय, हर बंदा एक एंगर की सीमा के बाहर पे बैठा हुआ है, एंड दैट स्टेज इज द वन व्हिच इज गोइंग टू सी वन मैसिव अटैक, एक मास अटैक अगर तालिबान कर दे कहीं इंटरनल एरियाज में, इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली हैपन। वही होने वाला है सर। अगर आज नूर वली मसूद ने आके वीडियो दिखाया है, दिस शुड बी अ क्लियर वार्निंग टू द पाकिस्तानीज, बेटा समथिंग इज कमिंग योर वे, तुमको पता नहीं है क्या होने वाला तुम्हारे साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड पाकिस्तान आर्मी के अंदर फैक्शंस हो रखे हैं, आपके आईएसआई के अंदर फैक्शंस हो रखे हैं, मतलब आप एक कोहेसिव उसमें हो ही नहीं ना, आप एकला चलो वाली सिचुएशन तो है ही नहीं है कि आपकी पूरी आर्मी एक तरफ चल पड़ेगी जहां आप बोलोगे तो दिस इज अ वेरी प्रिकेरियस एक्चुअली सिचुएशन व्हिच Pakistan needs to actually wake up sometime, and if not Pakistan, at least USA should be waking up. Correct. Thank you so much, sir. Let's get into questions. सबसे request है, like करिए, subscribe करिए channel को, share this with your friends and families, and let's take your questions. Guys, we got 1,000 likes. We got 3,500 people watching. That's not a ratio which is nice. So please, मेरा सबसे request है, that's very very important, guys. Like करिए, that's the minimum you can do, and of course check your subscriptions. काफी लोग अभी तक subscribe नहीं है. I checked today, it is 31.7%. So please don't do that यार. बटन दबा दो। 31.7%, अगर वो 31.7% सारे आज ही सब्सक्राइब कर देना, we'll cross 6.2 lakhs today itself. So please hit the like and subscribe. And of course, if you do want to support the channel, please do so. All the details for you on the description. चलिए, let's take some questions. सबसे पहले यहाँ से शुरू करें। रॉबिन जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आदि भाई यार, अपना फ्लैंक कब स्ट्रेट करेगा आफ्टर क्या इंडिया कब अपना स्टार्ट करेगा? सो ही इज अ फ्रेंड फ्रॉम वेरी अननोन प्लेस सर। इंडिया कब अपना फ्लैंक स्टार्ट करेगा टैरिफ डील के बाद? इंडिया का फ्लैंक तो सिंदूर के साथ ही शुरू है और मल्टीपल फ्लैंक्स में इंडिया कर रहा है। जनरली वॉरफेयर में आज के जमाने में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वॉरफेयर होता है, तो आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वाला डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, बट इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड सिंक्रोनाइजेशन, एंड सिनर्जी बहुत उम्दा तरीके से हो रखी है इस टाइम पे। सो आई थिंक इट्स टाइम टू जस्ट वेट एंड एंजॉय। All right. Adi bhai, KPK new CM removed the Pakistani flag and Baba Ecom picked from the office. What's happening? Yeah, these are the signs. These are the early signs. A lot of such signs I think we'll see, and just Pakistan just needs to watch out. Yeah, I mean that was quite weird, huh? Chitral is also disputed, right? Can we expect some negotiations when we plan to take GB? Do you actually? I think most of the people don't know the geography of Chitral. Yeah, Chitral is not like one town. Okay, I'll just show you. Everybody gets confused, Max. So, do you mind? I'll just take a second. Yeah, please. Yeah, go ahead, please. People get really confused with this area. So, let me just go inside. 1 second. I need my joystick for this. Okay. So when you see this, ये देखिए, ये पेशावर है, ठीक है, पेशावर, Marakan, Kalam, and here is Chitral, right? So when we see the map, right, our official map ends here. वो जो पुराना एक हमारा होता था कि ये एरिया भी, this was also in under Indian influence. There is no question about it. ठीक है, but the official maps finishes far away from Chitral.
चित्राल में 3 बेसिक वैलीज हैं। आप ये देखो, ये एक वैली है, ठीक है, व्हिच इज़ द नेशनल पार्क। ये चित्राल वैली है व्हिच इज़ गॉट द, यहाँ पर नीचे अगर आप जाओगे इधर पे आपको ये रनवे-शनवे दिख जाएगा इधर पे, राइट हियर। एंड एक ये तीसरी वैली है इधर पे, ये अयून के साथ में ना ऐसे करके ये ऊपर जाती है परसन इस तरफ, एंड इधर पे काफ़ी रेयर अर्थ वेयर अर्थ इनको मिलता है। If you see this Garam Chashma region, this is not the, this is a small गाँव called Peshawar, so Peshawar is south. ये गरम चश्मा और ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ तक द तालिबान हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोल, ओके। एंड चित्राल के बीच में से यहाँ से एक रोड जाती है, विच इज द मेन रोड दैट गोज अप टू गिलगिट बाल्टिस्तान। सो अयून के रीजन में, ये भटिक के रीजन में, यहाँ पर आके ये लोग इनके ऊपर रेड्स करते हैं, दे ब्लॉक दिस रोड, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक करते हैं, लॉट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी कम्स यहाँ पर, दे ओपन इट अप एंड स्टफ लाइक दैट, बट दीस गाइज डोमिनेट दिस एंटायर रीजन राइट हियर, ठीक है। ये पूरा जो रिज है इसको बड़े अच्छे से डोमिनेट करते हैं, फ्रॉम परसान टू बात्रिक, दिस इंटायर थिंग दे डोमिनेट। एंड जो मेन रोड है उस पे दे डोंट हैव फुल कंट्रोल, बट दे डू हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, you know. Yeah. They can create a lot of challenges for the Pakistani movement there. तो या जो ये एक क्लासिकली बोलते हैं कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान का रेट नहीं है वहां पे, एंड इट इज पीपल ऑफ these areas which are actually having a lot of say. सर एक वो है, दूसरा ना उस रीजन में वैसे भी सी चित्राल इज अ अफगान इन्फ्लुएंस प्लेस। वहां पर नीचे वो भी कलश वैली है, कलश तो लोग ही अलग होते हैं वो, वो सब बोलते हैं यू नो अल्लाह अकबर एंड ऑल दैट, दे से ऑल दैट स्टफ, बट दे डोंट कंसीडर देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स। वो बोलते हैं मुसलमान नहीं, हम कलशी हैं। Yeah, true. And the people there are very the girls are very fair, the guys are very handsome, girls are very beautiful, अलग ही दिखते हैं वहाँ के लोग, and they've got a lot of very tribal sort of a influence, but very stone age, not stone age, but they have a lot of stone work. आप उनके देखें तो आपको लगेगा कि वो मंदिर टाइप हैं, उनके घर वर ऐसे वो बड़े स्टोन वोन से बनाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। So it's very different in these areas. It's not अगर आप बोलो ये सारे पश्तून हैं, no. Each one of these valleys has its own tribe, and it's very they are just so apart from each other, आपको पता नहीं चलेगा। Like for example, कलश के अंदर एक जगह एक ट्रेडिशन है, लड़कियों को कोई पसंद आता है तो उसके साथ भाग जाती हैं। That's the tradition. Then they are supposed to stay away from Kalash for 3 years, and then if the marriage survives for 3 years, then the girl and that boy comes back, and then the entire village will say, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब शादी होगी तुम्हारी। एक इनका वो है सिस्टम, भाग जाती हैं लड़कियां। So BLA decided to watch this show, eat popcorn and chill out for a while, or they are silently increasing their area control because silence is dangerous. See, it's a very coordinated kind of operation that is being launched these days. So earlier it was BLA and TTP which was actually coordinating. Now, you know, Afghan Taliban has also come into fray. So एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि there is a coordination for the resources also, because you know, whether it is weapons, ammunition, so they are actually trying to work together in this field also. Secondly, if you see the districts, the areas which have been expanded by TTP, you know, vis-a-vis which have been expanded by BLA, तो एक तो ये एरिया का जो इंक्रीज है ना, जो अंडर इनके इन्फ्लुएंस है, अटैक है, ये भी बढ़ रहा है, और ये भी कोऑर्डिनेशन के साथ में बढ़ रहा है। तीसरी चीज जो इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशंस है, दैट इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, all this is also equally increasing. So as a result, what is happening is security forces are not getting respite from any side, anywhere, and they are so overstretched. And Adi, I can tell you that human, you know, spirit, human, you know, tenacity, that also has the limit. So these troops, whether it is, you know, police, whether it is paramilitary, whether it is army, they are all so badly stretched that it is going to start having the effect actually very soon. And you will find a lot of desertions, you know, taking place because इनके पास ना तो cause है,
इंडिया के साथ में जब होता था तो कॉज होता था, एक कॉमन कॉज होता था, एक नेशनलिटी और उस चीज की बात होती थी। अब इनके पास कोई कॉज नहीं है, कोई मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, इनके पास कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है, इनके पास वेपन्स नहीं है, मतलब how they are going to, so this is a very well coordinated kind of activity which is taking place, and that is why it is showing a lot of impact. जी Wolf bhai, thank you so much once again, man. Very grateful for your contribution towards the channel. Traveler's blog, thank you. UK sanctions Indian company buying Russian oil in India, must hold UK FTA. First world third rate countries should realize India is a serious nation. Yeah, that is true. I discussed, past 2 दिन से and अगले 2 दिन तक we will be talking about global geopolitics of trade. So, you should see the past 2 days shows. Tomorrow will be Navroop ji and day after will be General Ryan. So this is how they're going to be, man. They will do this nonsense. Satyam sir, thank you so much. Thank you so much for your contribution. Thank you so much for calling me kind words. Don't block this guy, यार. फालतू में मेरे को 40 रुपए देके गाली दे रहा है. क्या फर्क पड़ता है आपको? Adi want to see your face. Afghan partition. Joker. This is some Pakistani sir who thinks he can, some Pakistani or some mad guy. He comes on all these channels. He'll put $40 and abuse. So fantastic, no problem. Keep it on, brother. Okay, sir, are the same people behind with the Gen Z in Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and now playing in Peru? What's going on, and why is this happening? By the way, there's another one happened in Madagascar. Yeah. So this will happen, yaar. Any bottom line, boss, as sir said, China को लात मारनी है. जिस कंट्री में ओवर्ट चाइनीज इन्फ्लुएंस होगा वहां पर regime change होगी. Yes. And machination is same, play up is totally same. इनका in fact amplification का diaspora और वो सारा जो system है वो भी same है actually. Only thing is it starts at a place, migrates, multiplies, amplifies, and वापस जब तक आता है तब तक it becomes so massive that it gets out of control. So that is the standard system इनका. And that is what they are doing. I like the comments. Whoever saying 40 rupees is only DGISP's budget. I think it's very, very apt. Thank you so much. Why Kyrgyzstan borders Tajikistan and we have a base there already? Are we planning to supply the Taliban from there or maybe run intel operations? Shh. कुछ नहीं बोलना. Motorized shovel brigade, thank you so much. कहते हैं the Northern Alliance is now completely out of the picture. Will it be playing any part? I don't think so. नहीं, अभी I think अभी जरूरत भी नहीं है ना. Northern Alliance की जरूरत ही नहीं है अभी तो. जब actually the power which controls Afghanistan, when they are all going to come together and support, then Pakistani ISI propaganda started promoting Shah Massoud. I'm like, bloody idiots. These guys have no idea. They want to work with Shah Massoud and Amrullah Saleh of all the things to beat India. Yeah. Yeah. आदि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि एंटायर इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तानी नैरेटिव और जो ये सोशल मीडिया फेकरी जो ये करते थे, ओनली गियर्ड अगेंस्ट इंडिया एक्चुअली एंड कश्मीर वाले कॉन्टेक्स्ट में. सर वो भी अकेले नहीं है सर. अमेरिका, टर्की, चाइना. या तो जब ये अफगानिस्तान वाला जब इशू आता है ना तो अभी उनके पास में they have to learn a lot actually. अभी ये बिल्कुल they have suddenly caught up which they don't have मसाला actually. उनके पास उतना ज्यादा मटेरियल है नहीं अभी. Snowy ji, thank you so much. I support your statements in Jai Hind. PKMKB. Wolf bhai, thank you. If anyone can help me, I need to distribute sweets and you close to 500 poor kids for Diwali. Are you talking about in India, bhai? If you're doing it in India, please don't do randomly here and there. Okay, so I could help you with something, but please don't do randomly because I don't want a good effort to go waste. Yeah. So please do not do it randomly. I could help you. I could connect you with some organization and you can speak to them on your own and get it done.
because I don't want anything to do with it. It should not be anything. And my point is that don't, mat karo ye. ऐसे, don't randomly throw it. ठीक है? It's a very kind gesture. And by the way, I have a mail to send to you. Somebody sent me their a drone anti-drone system profile, so I'll send it to you. Satyamji, thank you once again. Silver Super Rally Boss, US short ना करे. नहीं यार, गोल्ड अवेलेबल नहीं है इनके पास दुनिया में. अभी तो एक्चुअली रिवैल्यू करेंगे, तो शॉर्ट नहीं करेंगे वो. Sir, I think no Indian Army chief have ever used Bhugol badal denge statement. It's serious, and if Indian Army chief is saying is Hiramondi should be careful. Yeah, it is. It is very serious, and it is being said not just for the sake of saying, especially when your one operation is on. एक ऑपरेशन जब आपका ऑलरेडी चल रहा है, उस बीच में कह रहे हैं, अगर तो कहने की जरूरत पड़ी है तब कह रहे हैं, और कहने से कुछ इरादा जो है वो शायद इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस है. Okay, last few questions sir. हर्षित जी, थैंक यू. मुझे आप ये बताओ कि पाकिस्तानियों को का तो समझ में आता है कि ये, लेकिन ये कंगालूज इतना ज्यादा इंडिया हेट पर क्यों उतर आए हैं? क्या समझते हैं अपने को? Any comment, sir? I think these things will keep happening. देखो यार, as a big country ना, India will tolerate Absolutely. a certain amount of nonsense. वो करेंगे, that we have to. So Yeah. take this as a punch that you'll have to take. These small countries, क्या करोगे यार? You can't threaten it. I mean, Yeah. it'll be unfair. So you'll have to kind of take some nonsense from these countries. Yeah, this and will be. when you are rising ना, तो आपको बहुत सी चीजें absorb करने की जरूरत होगी, और इस तरह की चीजें होंगी. So when you are improving your stature and your capacities, capabilities, I think these are things which should be just ignored. And secondly, बताऊं मैं, we've got enough Kangaroos. Let's throw them out. That will be the best response we can give them. Absolutely. चुपचाप काम चलता है ना, रात को वो चलने दो. That is the best response you giving them. कुछ नहीं चाहिए हमको. Rajesh Malik ji, thank you. How will the Iran reactions to Pakistan giving its bases to USA? How will Iran react? You see, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी कभी ये बातें करते हैं, बोलते हैं पैटर्नल, फ्रेटर्नल, दुनिया भर के ये टर्म्स यूज करते हैं कि वी हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. बट अभी जिस तरह के स्टेप्स इन्होंने उठाए हैं, आई थिंक बालूचिस्तान तो एक है ही है इस एंगल से, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, लॉट ऑफ अदर forces which are actually operating. So Iran is not going to spare Pakistan. There is no doubt about it. But as of now, Iran also is, kind of in a situation. So I think long term, Iran is going to do whatever it needs to do to Pakistan. But otherwise, it has to actually counter what USA is trying to do, encirclement and all that. So honestly, I thought Parachinar will blow up by now. And Khurram agency will blow up. Khurram is not blown up as of now, because Khurram में Shia Sunni fight होती है, and वहाँ पर Iranians have a huge amount of sway in that area. I thought that will blow, but that didn't. So I don't know. I mean, let's see how it goes. Wolf Bhai, thank you once again. Very kind. You're saying what could be the reason, sir, why Taliban visited India right after the Russian visit? Any connections, sir? Absolutely, these are all connected. And you see, there are a lot of track twos also which are happening. So every one visit which is in the overt domain or official domain, it is supported by half a dozen of the other kind of communications activities and all that, because everything has to be fine-tuned and coordinated. So a lot is happening. Yeah. Oh, 1 second. I missed this is a very interesting, funny one. What meds did Trump skip when he threatened PM Modi to end his political career and reveal his card? A, Adderall, B, Tylenol, C, Xanax, 4, methamphetamine. I think it was fentanyl.
Guys, delusional, man. Yeta Lonim. Thank you so much. I don't know how to pronounce that, but thank you so much. Hello, Brigadier Sir Nadi. Is Pakistani propaganda machine on the back foot due to fear of if Afghans real world backlash? Recent videos of kicking heads and stuff. Yeah, well, yeah, there is nothing known as Pakistani DGISPR. Let me assure you this. What we guys don't understand, and Sir will back me up on this. Guys, when we fight Pakistan, there is Chinese weapons, so Chinese military companies are doing propaganda. There are American F-16, so American military companies are doing propaganda. There is bloody British influence there, so those guys are doing some propaganda. Then there is the Turks sitting there; they are doing propaganda. So we are not one against one. Yeah. Yeah, one against five of them, yeah, and two of the biggest countries in the world. I mean, let's be real. And here, Adi, when it comes to Afghanistan, Afghanistan's own propaganda or own, information warfare system is so strong that they failed Americans. Americans, with all the machinery, all wherewithal with them, they could not actually, do as well as the Afghanistan, guys did. That is one. And secondly, now here, as you mentioned initially, China's effort is also going to be playing in their favor. Russia's effort is going to be playing in their favor. And whatever, India might be doing or, so wo sari Iran ke jo bhi assets hain. So it is not, today the situation is not that good as far as Pakistan is concerned. So they are going to actually see the music with the passage of time. अभी आप देखो इसमें तो एक ही चीज बनती है सर, वेरी सिंपल. ठीक है, you've been basically left alone. Yeah. अकेले खड़े हो और सब ठोकेंगे आके. मतलब it's basically हीरा मंडी to its best. Absolutely. Yeah. So Deepta ji, thank you. Every time Trump spouts nonsense, our foreign ministry responds in a language that no one understands. Why is that? It's called strategic ambiguity. You don't stand confuse the other guy. Yeah. No, actually, it meant quite a bit. Read the second and the third paragraph together. You'll kind of see there is something. Amoeba, thank you. कहते हैं, please promote Tappu to Thappu. He's done enough. And Ryan Saab, thank you. Over the past some time, Raw SIGINT plane GB8001 has been very active, mostly in North India. Why? Yeah, well, Pakistanis don't have air defense, guys. Remember that. And they are flying their old, their super sultans and their bloody, whatever crap they've got. They're flying up and down, trying to control their airspace. Yeah, and lot of assets have been damaged. Second. So ऐसा है, अब वो उड़ेगा तो हम भी उड़ेंगे. क्योंकि वो सिग्नल फेंकता है, हम सिग्नल लेते हैं. तो उसका क्या होता है, फिर आप छोड़ दो उसको. ठीक है. So that is how the game is. It's a cat and mouse game. Everybody will be doing this, and they are in a bit of a challenge right now, so they're doing it a little more. Nothing else. All right, sir. Thank you so much. Always a pleasure talking to you, sir. This was a great discussion. Thank you, Adi. And, thank you, Adi. It's wonderful talking to you. Thank you, sir. Namaskar, guys. Sign off. Before you sign off, write a comment and don't forget to check the like button. Jai Hind.